Hello everyone, I welcome you all to our YouTube channel Engineering Shiksha. So in the last few videos, we have discussed different electrical project ideas. So in today's lecture, we are also going to discuss some more ideas based on DC-DC converter, that is purely power electronic based project. So in today's lecture, we will cover only one project that is based on flyback converter, that is known as isolated DC-DC converter. The specifically disadvantage of this particular converter is that you can design this type of converter without microcontrollers. So, oh my god! Wow! So let's start today's video. So in the today's class, I'm going to focus mainly on this power electronic based project, and even in power electronics also I have selected a specific area, that is DC-DC converters. So in today's lecture, we are going to discuss DC-DC converter, and specifically that is also isolated DC-DC converter for SMPS applications. So remember, there are lots of DC-DC converter based project. Let us say you can select boost converter for your, you can say that PV array also, but that kind of thing we are not going to cover in today's lecture. We are going to discuss DC-DC converter specifically for SMPS application. ये वो applications है जैसे कि आपका mobiles है, आपके laptop और any other DC appliances at your home that require let us say low voltage, low power, or maybe possible high power application. In that case, what kind of power electronic circuit that you require, that we are going to discuss. So हम यहाँ पर आज एक ही कन्वर्टर डिस्कस करेंगे, उसके बेस पर आप बाकी के सारे कन्वर्टर भी आपके प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं. तो these are the other area, that is renewable energy source, जिसको हम आज टच करने नहीं वाले, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया. So now let us discuss about the first of all, DC-DC power converters are mainly categorized in two parts. The first part is known as a linear power supply और actually linear regulated power supply, जिसके बारे में हम बात नहीं करने वाले. उसके बाद जो second type, that is known as a DC chopper, that is also known as non isolated converter. So आप लोगों ने आपके शायद power electronics के basic graduation course में ये सारे converter पढ़े होंगे. That is buck converter, boost converter, buck boost converter, even choke, या कई लोग इसे cut converter भी pronounce करते हैं. Then SEPIC converter, this is also a very good converter, trending nowadays. People are doing even PhD also in SEPIC converter. So इसके भी काफी अच्छे टॉपिक्स और इसके ऊपर भी काफी अच्छे आपको कन्वर्टर बेस्ड IEEE पेपर मिल सकते हैं, और उसका सर्च करके आप एक अच्छा आइसोलेटेड डीसी कन्वर्टर्स बना सकते हैं. फिर बात करते हैं लेटेस्ट से स्विच मोड पावर सप्लाई, दैट इज नोन एज SMPS. सो आइसोलेटेड पावर सप्लाई, जहां हम इस डीसी डीसी कन्वर्टर में क्या इंसर्ट करते हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्मर. सो इसके बारे में भी हमने पूरा एक वीडियो बनाया कि योर डीसी डीसी कन्वर्टर are actually require transformer and it can operate well with a transformer also. Okay, so these are the some categories. Let us say flyback converter, forward converter, push pull converter, half bridge, full bridge converter, ये सारे converters हैं. Based on your power rating आप इसमें से कोई भी converter select कर सकते हो. इसमें से हम सबसे पहला basic जो converter लेते हैं, that is flyback converter. This is very popular in low power applications. लो पावर एप्लीकेशन मींस जहां तक मुझे याद है 50 वॉट, लेस देन 50 वॉट, यू कैन सिलेक्ट दिस टाइप ऑफ कन्वर्टर्स. सो ये कन्वर्टर आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, आपके घर पे भी. जैसे आपके पास अगर मोबाइल चार्जर्स है, या आपके पास अगर लेटेस्ट से इंटीग्रेटेड फ्लाईबैक कन्वर्टर, अगर आपके पास लैपटॉप पावर सप्लाई है, सो इस तरह के छोटे छोटे जो पावर रेटिंग्स है, वहां पे आपको ये रेटिंग मिल जाएगा. जैसे जैसे आपकी पावर रेटिंग बढ़ती जाएगी, आपके कन्वर्टर की रेटिंग बढ़ती जाएगी. ठीक है. सो उसमें से हम जो कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आज हम जो बात करने वाले हैं, दैट इज फ्लाईबैक कन्वर्टर. इट इज बेसिकली डीसी डीसी कन्वर्टर, और यू कैन से दैट स्टेप डाउन डीसी कन्वर्टर्स. So whenever you are having, let us say 230 volt AC, and when you convert this 230 volt AC to DC and you require very low voltage, let us say आपके आउटपुट वोल्टेज की रिक्वायरमेंट काफी कम है, let us say 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, और आपका इनपुट वोल्टेज 230 वोल्ट है. अगर आप उसे डीसी करते भी हो, तो 230 इंटू आप उसकी पीक वैल्यू आप मान के चलो के 230 इंटू रूट 2, 315 के 320, 25, राइट. सो उतने हाई लेवल वोल्टेज को आपको 5 वोल्ट पे लाना है. सो डेफिनेटली यू रिक्वायर और यू हैव टू इंसर्ट ट्रांसफॉर्मर विद दिस पर्टिकुलर सर्किट. सो इस पर्टिकुलर जो फ्लाईबैक कन्वर्टर की अगर टोपोलॉजी की मैं बात करूं, तो योर प्रोजेक्ट्स आर मेनली डिवाइडेड इन टू पार्ट. फर्स्ट पार्ट आपको पीडब्ल्यूएम या पल्स जनरेशन, दैट इज माइक्रो कंट्रोलर बेस करना है, या पीडब्ल्यूएम आईसी आपको यूज करनी है. और दूसरा जो है, दैट इज चैलेंजिंग जो टास्क है, दैट इज ट्रांसफॉर्मर डिजाइनिंग.
ओके, अगर बूस्ट कन्वर्टर आप रिन्यूएबल में लेते हो, जिसने काम किया उसे पता होगा, यहाँ पे आपके लिए चैलेंजिंग हो जाता है, दैट इज इंडक्टर डिजाइनिंग। और यहाँ पे आपके पास आ जाता है दैट इज ट्रांसफॉर्मर डिजाइनिंग। ये नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर नहीं है, दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी फेराइट कोर ट्रांसफॉर्मर्स है। सो अगर इसके बारे में अगर आपको जानना है, हाउ टू डिजाइन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर, एक बहुत ही अच्छी बुक है, एल उमानंद सर की एक बुक है, दैट इज मैग्नेटिक पावर कंपोनेंट डिजाइन। उसके बारे में वो आपको पढ़नी होगी, और आपको सारे के सारे आपके जो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग्स है, ट्रांसफॉर्मर की कोर्स है, वो सब आपको डिजाइन और सेटअप करनी होगी। और साथ साथ में आपको आपके जो भी एरियाज है, आप जो भी सिटी में रहते हो, आपको ये भी सर्च करना होगा कि कहाँ पर आप इस तरह का ट्रांसफॉर्मर डिजाइन कर सकते हो। काफी छोटी सिटी में हो सकता है आपको ये चीज या ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आपको शायद इसका आपको कहीं पे और सिटी में भी आपको इसके बारे में चेक करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम एक ही टोपोलॉजी और एक ही कन्वर्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल दैट हाउ दिस फ्लाईबैक कन्वर्टर इज वर्किंग ऑन। मैं आपको ये सारे वेवफॉर्म्स जो है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करने वाला। what we are going to deal in this particular lecture, यहाँ पे मैं आपको यही एक्सप्लेन करूंगा that how you can design and develop this particular circuit। बट जो मुझे एक्सप्लेन करना है वो ये है कि यहाँ पे आपके पास एक 230 वोल्ट एसी सप्लाई वोल्टेज है, तो आपको यहाँ पर जो 5 वोल्ट की लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, सो यू हैव टू इंसर्ट द ट्रांसफॉर्मर, एंड दिस इज नॉट अ नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर, दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी फेराइट कोर ट्रांसफॉर्मर। सो दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी फेराइट कोर ट्रांसफॉर्मर, जिसके लिए आप कोई भी अच्छी सी बुक रिफर करके आप इसे डिजाइन कर सकते हो। आप नंबर ऑफ वायर, कौन से गेज का वायर लोगे, कौन सा आपका कोर लोगे, किस तरह से उसका वाइंडिंग माउंट करोगे, वो एक आपका ये यहाँ पर एक कंपोनेंट हो गया। एसी सप्लाई का हो गया, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पे डीसी दिया हुआ है, तो अगर आपके पास एसी है तो यू हैव टू रेक्टिफाई, एंड दिस इज योर स्विच। स्विच में आपके पास मैं जो आपको प्रिफरेबल कहूंगा, तो आप या तो मॉसफेट के ऊपर चले जाए या तो आईजीबीटी के लिए चले जाए। सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये जो डायोड है, याद रखना, दिस इज नॉट अ नॉर्मल और पावर डायोड, ये आपका हाई फ्रीक्वेंसी डायोड जो आपको यहाँ पे लेना है, जिसकी रेटिंग और जिसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा। सो मान लो कि यू हैव सिलेक्टेड दिस पर्टिकुलर टॉपिक फॉर फ्लाईबैक कन्वर्टर, तो उसके स्टेप कैसे करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है मैं बता दूं, आपके ग्रुप में आप डिवाइड कर दो, और कुछ स्टूडेंट जो है वो ट्रांसफॉर्मर डिजाइनिंग के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दे। कुछ स्टूडेंट आपके ट्रांसफॉर्मर डिजाइनिंग पे वर्क करना स्टार्ट कर दे, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो पीडब्ल्यूएम जनरेशन पे काम करना स्टार्ट कर दे। PWM generation, why you require this high frequency pulses so that your transformer will not saturated even though you apply a DC voltage. So ये जो आपकी स्विच है, लेटेस्ट से MOSFET या IGBT आप जो भी यूज करते हो, okay, whether you use a MOSFET or IGBT, that require gate pulses. So PWM generation पे कुछ लोग काम करना स्टार्ट कर ले, कुछ लोग ट्रांसफॉर्मर डिजाइनिंग पे काम करना स्टार्ट कर ले, और कुछ लोग उसी वक्त इसका मैटलैब सिमुलेशन या एनी अदर सिमुलेशन जो आपको अच्छा लगे उसमें काम कर सकते हैं। सो इस तरह से आपका ये एक सेमेस्टर वर्क हो जाए, और नेक्स्ट सेमेस्टर में आप इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल टेस्ट सेटअप पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो। सो ये आपकी पूरी प्रोसीजर रहेगी जो लोग अगर इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं। So now you are having two option, either you can use a microcontroller or maybe possible you can use a PWM IC. So microcontroller प्रोग्रामिंग के बारे में भी मैं आपको बता दूं, अगर आप डीसी डीसी कन्वर्टर पे काम कर रहे हो तो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग नहीं रहता है। ठीक है, अगर आप आर्डिनो यूज करते हो या आप 8051 यूज करते हो आपके लैब का, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दिस विल बी अ वेरी सिंपल। व्हाट यू रिक्वायर जस्ट अ फ्रीक्वेंसी पल्सेस। आपने कोई भी टाइमर पढ़ा होगा, जो टाइमर के अंदर आप पीडब्ल्यूएम जनरेशन पढ़ते हो, यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेशन प्रोग्रामिंग नहीं होगा जैसा कि हमने मशीन में देखा था। इन द मशीन एक्जेक्टली व्हाट हैपन, यू रिक्वायर लेटेस्ट से एसपीडब्ल्यूएम, सो योर पल्सेस आर गोइंग टू बी वेरिड। सो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड प्रोग्रामिंग वहां पे थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था, पर यहाँ पर तो आपको कुछ नहीं करना, यू आर हैविंग अ फिक्स टाइमिंग इंटरवल, लेटेस्ट से 20 किलोहर्ट्ज। तो जब आप 20 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी डिजाइन कर देते हो, आपकी पीडब्ल्यूएम पल्सेस आप डिसाइड कर लेते हो, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग इसका नहीं रहता है। यू कैन वर्क विद 8051 AVR कंट्रोलर, PIC IC, और इवन यू कैन वर्क विद Arduino also. So this can be work very well with Arduino also. तो अगर आप माइक्रो कंट्रोलर से फैमिलियर हो और अगर आपको माइक्रो कंट्रोलर यूज करना है, तो यू कैन डेफिनेटली गोज फॉर दैट PWM IC। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द मार्केट, जिसमें से एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज SG3525। सो दिस इज अ PWM IC SG3525। तो ये भी मैंने यहाँ पे दे दिया हुआ है पूरी सर्किट डायग्राम, ये रेडीमेड SG3525 IC है।
and what are the external component that you require to connect, ये यहाँ पे आपको सब कुछ मैंने यहाँ पे दिखा दिया हुआ है. So these are the list of all components that we have used in this particular project. Okay, so this is the experimental test setup of our flyback converter. So let me start with this. Your IC or your SG3525 that require let us say DC power supply. So यहाँ पे we are having a DC power supply, and you can see the pulses in the on the oscilloscope. So you can see the pulses. Okay, and that high frequency transformer. This is my high frequency transformer. Actually, we are having a two high frequency transformer. If you observe carefully, this is my second high frequency transformer, and this is the first high frequency transformer. This is we specially design this transformer, and sometimes we do the experiment. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो पुराना SMPS है उसी को खोल के उसी का हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर को यूज कर रहे हैं, पर उसका टर्न्स रेशियो और उसकी रिक्वायरमेंट आपके आउटपुट वोल्टेज के साथ हमेशा मैच हो ऐसा जरूरी नहीं है. और so these are the ramp waveform that you can generate by using SG3525. So this ramp is actually because of this RC circuit. So based on your R and value of C, how you can vary, you can actually vary your PWM pulses. Now let us discuss about some complicated circuit on flyback converter. अगर आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ flyback की इतनी simple circuit हमें नहीं लेनी है, so let us say you want some complicated circuit, so you require or you go for integrated flyback converter. So generally आपका जो computer का power supply है, what is the setup? The thing is that you are having AC supply. What you are doing, you are putting the UPS, okay, and UPS is also providing a AC supply, and then you are converting a DC output. Okay, so this is your SMPS and that will provide a DC output. So this is your complicated, or you can say that two-stage conversion. So this two-stage conversion can be integrated. So you can use this kind of supply when you are having AC rectification and you are also having uninterruptible. This is known as uninterruptible SMPS. So even your power supply goes on, you are having this battery and battery will provide a supply. So this is known as integrated flyback converter. So इसके बारे में अगर हमें जानना है तो ये रही हमारी सर्किट. Okay, so ये AC supply है. This AC supply will provide the DC, or you can say that load will get the supply from AC supply. If your AC supply is going to be absent, in that particular case, this switch is going to be closed. Remember, this is transformer primary, this is also transformer primary, and this is transformer secondary. So जैसे ये power supply goes off, this switch is going to be closed, and this will become DC to DC conversion. Remember, even this diode is also working as a AC to DC conversion. So basically this is DC to DC conversion, and this is also DC to DC conversion. So जैसे ही आपका power supply अगर जाता है, if your power supply goes off, ultimately this battery will come into the picture, and this battery will provide the load to the supply. So इसके अंदर भी जैसे कि मैं आपको कहता हूँ, आपको इसी तरह से स्टेज वाइज काम करना है. You have to and one more point, remember this diode is actually a fast recovery diode. So जैसे कि मैंने आपको बताया, this is not normal diode, this must be a fast recovery diode. तो यहाँ पे आप normal diode, ये D1, Din, they all are normal diode, but this is actually a fast recovery diode. So आप सिमुलेशन कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू द सिमुलेशन. इसके ऊपर आपको IEEE पेपर भी मिल जाएगा. हो सके तो मैं इसकी लिंक भी आपको यहाँ पर दे दूंगा. सो आप उस तरह के पेपर का आप सिमुलेशन कीजिए. सिमुलेशन वेरीफाई होने के बाद आप इसके हार्डवेयर पे भी जा सकते हैं. So this is my simulation diagram. So जिसे यूज करना हो उसको थोड़ा बहुत इस पे से आइडिया मिल जाएगा. So this is my output voltage. So if you observe, this is my output voltage and output current, and this is my input AC voltage. So now you can observe that even the interruption of AC voltage, जब भी हमारा interruption AC voltage का available नहीं है, in that case also your load is getting supplied constant voltage. This is because of what? Battery is connected, right? जहाँ पे आपका AC voltage चला भी जाता है, okay, it will be, if it is a shutdown, in that case also you will get output voltage and output current because of battery. So इस तरह से आप सिमुलेशन में पहले दिखाओ, एक सेमेस्टर उस पे वर्क करो, and then you have to proceed for hardware. Okay, this is another version. जैसे कि मैंने आपको कहा, आप स्टेप वाइज काम करो. अगर जैसे मैं मेरी बात करूं, सो इन द फर्स्ट ईयर जब मेरे पास पहली बार स्टूडेंट है, आई यूज ओनली फ्लाईबैक कन्वर्टर. देन यू कैन गो फॉर इंटीग्रेटेड फ्लाईबैक कन्वर्टर, देन यू कैन थिंक अबाउट एडवांस कन्वर्टर. सो ये शायद मेरे थर्ड बैच में मैंने ये पर्टिकुलर थिंग हमने अप्लाई की थी, दैट इज इंटीग्रेटेड फ्लाईबैक कन्वर्टर विद सोलर पावर कन्वर्जन. तो यहाँ पे कुछ इस तरह से था. इफ यू आर हैविंग एसी पावर सप्लाई, देन एसी पावर सप्लाई विल फेड टू दिस पर्टिकुलर बैटरी. So when in case of AC power supply is not available, or let us say even though AC supply is available and you are having the solar is available, so if you are having the solar intensity, then this solar will provide a load to this particular battery to charge your battery power supply.
सो ये तब यूज होता है जैसे लेटेस्ट से हम ट्रैवलिंग कर रहे हो और हमें बैटरी को चार्ज करना है। सो मोबाइल चार्जिंग जहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप इस तरह से आपके जो सोलर पैनल बेस्ड आपके पास जो सप्लाई अवेलेबल होगा, छोटा सा अगर आपके पास सोलर पैनल होगी, सो वो सोलर पैनल आपके चार्जर के साथ या इस तरह से फिट हो जाएगी और वहां पे आपको ये पावर सप्लाई देगा। हालांकि ये हमारे इसके अंदर मैं आपको बता दूं, एक्चुअली हम फुल्ली सक्सेस नहीं गए थे, हम ऊपर का पार्ट कंप्लीट कर पाए थे, नीचे का जो हमारा स्टेज है वो पेंडिंग रह गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। So now let me explain this experimental test setup. So यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, we are having solar and AC, but जैसे कि मैंने आपको कहा सोलर पैनल हमने यूज बनाना और प्रोटोटाइप में हमने यूज कर ली थी, मैटलैब सिमुलेशन में हमने यूज कर ली थी, बट आफ्टर फाइनली डेवलप में जो है वो हाफ प्रोजेक्ट हुआ था। पर मैंने कहा था इस तरह के प्रोजेक्ट का आपको एडवांटेज क्या मिलता है, व्हेन यू आर हैविंग अ टू ऑप्शन। ओके, आपका जब आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास एसी सप्लाई भी है और आपके पास डीसी सप्लाई भी, आपका हाफ प्रोजेक्ट भी रन होता है, तो आपके एग्जामिनर के सामने एक अच्छी इंप्रेशन आप रख सकते हो। So now let me start to explain this thing. So you are having ये जो सर्किट है that they all are your basically AC to DC, और ये जो आपका रेक्टिफिकेशंस है, so this is your rectifiers and this is your 7805 7815। so जो भी आईसी की रिक्वायरमेंट्स है वो सारी हम यहाँ से फुलफिल कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखोगे हमने यूज किया हुआ है माइक्रो कंट्रोलर 8051। आप SG3525 से भी कंटिन्यू कर सकते हो, पर हमने यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर यूज किया हुआ है। सो माइक्रो कंट्रोलर विल जनरेट द पल्सेस। ये हमारी ऑप्टिकल आइसोलेशन है, जैसे कि हमने आगे भी एक बार एक्सप्लेन किया था, दिस इज ऑप्टिकल आइसोलेशन जो मैंने यहाँ पे यूज की थी, दैट इज 6N137। उसके बाद ड्राइवर आईसी है, दैट इज योर IR2110। मेरे पास दो स्विचेस है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो एक अपर स्विचेस और एक लोअर स्विचेस, राइट। सो दो दो 6N137 मेरे पास यहाँ पर है। ओके, एंड ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी में दो वाइंडिंग्स है। सो दिस इज माय स्पेसिफिकली डिजाइन ट्रांसफॉर्मर। सो ये मेरा स्पेसिफिकली डिजाइन ट्रांसफॉर्मर है। दिस इज माय स्विच। स्विच की जहां तक मैं बात करूं, आई थिंक वी हैव यूज IRF 840, कभी कभी IRF 840, इवन समटाइम्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग इट फ्लेक्सिबल। सो कभी कभी IRF 840 निकाल दी और वी हैव यूज ST30N120। So because the failure rate of MOSFET and IGBT could be very high in this type of experiment, this transformer main problem with that, if transformer is not properly designed, then transformer leakage inductance is actually you can disconnect the supply and you can connect the supply. So अगर ट्रांसफॉर्मर लीकेज रिएक्टेंस अगर आपका हाई होगा तो दैट विल कॉज द स्पाइक ऑफ योर पर्टिकुलर IGBT। सो वो स्पाइक्स को अवॉइड करने के लिए आप स्नबर भी यूज कर सकते हो। इवन दिस ट्रांसफॉर्मर शुड नॉट बी, और डिजाइन शुड बी प्रॉपर, द वाइंडिंग शुड बी बाइफिलर वाइंडिंग एंड ट्राई टू मिनिमाइज द लीकेज रिएक्टेंस एज मच एज पॉसिबल। नहीं तो आपको लीकेज रिएक्टेंस को कहीं ना कहीं पाथ देना होगा, सो दैट ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस, और यू कैन से दैट द एनर्जी absorbed by the primary leakage reactance should not be ultimately causing this transformer, or causing this switch to be damaged. So to avoid that things, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें जो इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में हुआ था वो ट्रांसफॉर्मर डिजाइनिंग में ही हुआ था। अब प्रोग्रामिंग तो आप शायद हो सकता है आप बैठोगे और 3 या 4 दिन में ही कर दोगे, बाकी की सर्किट में अगर आपने आगे काम किया हुआ है तो इतना वर्क नहीं लगता है, बट ट्रांसफॉर्मर एंड इवन numbers that are associated with this transformer circuit जो एडिशनली हमने यहाँ पे कनेक्ट किया था, क्योंकि पिछले साल जब हम वर्क कर रहे थे, सो द फेलियर रेट ऑफ IGBT एंड MOSFET इज वेरी हाई and the cost of this ST30 and 120 is around 300 rupees. So this is also the test setup. So now you can see some more clear picture on this particular transformer. So you are having primary and secondary, and you are having, this is my fast recovery diode, and this is my switches. And you can see now number circuits are also connected with this particular part. So now another version is that, मैंने कहा जैसे आप जैसे स्टेप बाय स्टेप अगर काम करते रहोगे तो आप उसी सर्किट को आप ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, आप जैसे जैसे इस पे वर्क कर सकते हो, राइट। सो जो लोग पर्टिकुलरली मैं जो फैकल्टीज है उसे कहूंगा कि अगर आप कंटिन्यूअसली एक ही प्रोजेक्ट पे कंटिन्यूअसली वर्क करोगे, हर बार नए प्रोजेक्ट लेने की जगह पर अगर आप एक ही प्रोजेक्ट पर कंटिन्यूअसली वर्क करके उसे इंप्रूव करते रहोगे तो आपको उसका आउटपुट दिखेगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा फ्लाईबैक टोपोलॉजी विद सिंक्रोनस रेक्टिफिकेशन। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोजेक्ट हमने एक ही साल में कंप्लीट किया, ऐसा नहीं है। वी आर हैविंग लेट अस से बैचेस ऑन 2014 व्हेन वी स्टार्ट टू वर्क विद लेट अस से अ फ्लाईबैक कन्वर्टर ओनली। Then 2015 or 2014, I think 2013, 2014, we have worked with the integrated flyback converter with solar.
Then in 2016 we have worked with synchronous rectification. So आपको भी कुछ अच्छे सा मतलब आपका बैकअप भी रहेगा और आपका कंटिन्यूअसली और ग्रेजुअली उस प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट भी दिखेगा. So now let us say what we are doing in this particular semester. Remember, we have replaced diode with MOSFET. So this technique is known as synchronous rectification technique. If you learn flyback converter, whenever this switch is on, this diode goes to off, and whenever this switch is off, this diode has to be on. So that is the characteristic, because whenever this plus will appear over here, this is plus, this is minus, this polarity is actually reversed. So this is dot convention and this is dot convention. So when this is plus and this is minus, this will become minus and this will become plus. So it means that when I am closing this switch, जब भी मैं ये switch close करूंगा, this diode has to be turned off. And whenever I will open this switch, this leakage reactance or this inductance will change its polarity and this diode is going to be turned on. So इसका मतलब ये हुआ when this is on, this is off, when this is off, this is on. So ये डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है. डायोड की जगह पर अगर मैं MOSFET यूज करता हूं तो MOSFEट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि ये ऑन हो जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा. बट वी आर हैविंग नाउ प्रोग्रामिंग अप्रोच. हमारे पास अगर स्विच को ऑन करने के पल्सेस है तो जो ऑफ करने वक्त है वो जो भी पल्सेस है, हम वी विल जनरेट अनदर पल्सेस. Okay, we will generate another additional pulses and we will connect MOSFET over here. So now that MOSFET can be work as a diode. Because जब डायोड ऑन होता है वो इंस्टेंट आपको पता है when this switch is off, diode is going to be turn on. तो आप क्या करो, you will generate the complement of pulses. So this particular thing you can observe over here, and this SG3525. So now again in this particular semester we have shift from microcontroller to SG3525. So this SG3525 will give you a two complemented pulses. Okay, so this is full test setup or this is experimental setup of flyback converter with synchronous rectification. So let us observe one by one full circuit. So this is basically this is AC supply. It is rectified and this is 7815, 7812. So this will provide you a 15 volt, 12 volt or 5 volt requirement of this particular ICs are there. So मुझे नहीं लगता कि मुझे ये explain करना चाहिए आप लोगों को. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो ये यहाँ पर जो भी 12 वोल्ट, 15 वोल्ट और 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो एलिमेंट को है वो यहाँ से मिल जाएगी. अब आगे बढ़ते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट से सेकंड एलिमेंट. That is the main element. That is our PWM generation. So this is my SG3525 and this is my IR2110. So SG3525 will generate the PWM pulses and IR2110 के बारे में हमने आगे भी काफी बात कर चुके हैं पहले दो वीडियो में. ठीक है. So this is my MOSFET और IGBT driver. So this will generate the pulses. यहाँ पे आपको pulses मिलेंगे. ये यहाँ से ये pulses जो generate होंगे वो L in और H in में यहाँ पे दे दिए जाएंगे. So ये यहाँ पे येलो कलर के जो वायर आपको दिख रहे हैं ये हमने फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे राइट साइड पे देखोगे तो ये वापस वही सर्किट है 6N137 एंड IR2110 वाले आईसीस. सो यहाँ पे कभी कभी हम माइक्रो कंट्रोलर से भी पल्सेस जनरेट करके अगर देना चाहे तो दे सकते थे. सो उस तरह का प्रोविजन यहाँ पर रखा हुआ है. एनीवे अगर आप नहीं चाहते हो तो आपको यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू चेंज करके आप पीडब्ल्यूएम की पल्सेस को यहाँ पे वेरी कर सकते हो. ठीक है. सो दिस पल्सेस आर जनरेटेड एंड दैट इज गिवन टू IR2110. और बाकी के जो एलिमेंट्स है वो हमारे जो हमने आगे एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको IR2110 जब मैंने पहले वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया था. Now let us discuss about the transformer or you can say that this is my high frequency transformer which is actually connected with this switch. Okay, so ये हमारी switch है जो आपको मैंने अभी पहली स्लाइड में यहाँ पे दिखा दी. The remaining thing is that this is let us say this is my AC supply. Sorry, this is my AC supply. वहाँ पे ये मेरे दो normal diodes है. This is my filter capacitor and this is my switch. And remaining are the snubber circuit. Now let us discuss about the transformer secondary side. So now let us discuss about the transformer secondary side. So this is my transformer secondary side is also I am going to connect high frequency and the secondary side not fast recovery diode. I am going to connect MOSFET also. On the secondary side also I am having MOSFET. So this is my transformer secondary side where I am going to connect MOSFET. So this is my transformer. If you observe, this is my high frequency transformer. So primary of the transformer is connected with this particular switch and secondary of this particular transformer is connected through this particular another MOSFET switch, right? And this MOSFET switch is also fired by my PWM IC. So this is all about the flyback converter with synchronous rectification. So I hope you enjoy this lecture and you can found some information for your particular project also. So with this, let us end this video.